Shyam Misra and YouTube channel A to Z Grammar Classes. So guys, in this classes you will be provided lots of topic related to grammar and they will be very helpful for your grammar study. And this channel is A to Z Grammar Classes. It means here you will receive A to Z grammar course. So this is the introduction of all the topic that we will be taught. So let's see. We will discuss on various topics such as all the part of speech, second exercise related to correct use of part of speech, and third types of sentences, phrases and clause. And in this topic we will discuss on types of clause, subject verb agreement, transformation of sentence, and tenses. All the tenses we will be taught, active and passive voice, direct and indirect narration, reordering of sentences, some other structures such as making compound, complex and passive voice sentences. Okay, sentences using some correlative such as sentences, use of let, prefer, besides and so on. So guys, this is our first topic. Now guys, most of us don't know the perfect definition of noun, and I think this will be very useful for all standards student. Okay, so let's see. A word that is name of person, animal, place, thing, quality, idea, and typically used in a sentence as subject or object of a verb or an object of a preposition, right? Nouns are also called naming word. जो भी नेमिंग वर्ड होते हैं, मतलब जो भी नाम होते हैं, चाहे वो किसी चीज़ का भी नाम हो, वो क्या होगा? नाउन. नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा. सो एक बार मैं फिर आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ. नाउन यानी कि संज्ञा क्या होता है? किसी का भी नाम, चाहे वो किसका नाम हो, चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, ओके, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी एनिमल का नाम होना चाहिए, किसी जानवर का, किसी प्लेस, किसी जगह का नाम होना चाहिए, कोई भी वस्तु होनी चाहिए, थिंग, क्वालिटी यानी कि आपकी कोई विशेषता. यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि क्वालिटी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव. ओके, but here I will tell you the quality describing word that are called noun. Okay, idea, and typically used in a sentence as or object of a verb as an object of preposition. चाहे वो verb का object हो, चाहे वो preposition का object हो, both are called noun. So let's see all the example related to noun. Example number first. Shivam is my best friend. Here Shivam is a person. Here Shivam is a person who is my best friend. Friend is also a noun. And now I am teaching you Shivam. Shivam, that is a person. This is a noun in this sentence, and this sentence has another noun, that is friend. So I will tell you the friend. The word friend is called noun, and I will tell you when I will teach you the kinds of noun. Okay. My dog name is Bruno. Dog is an animal. Okay, so dog is a noun. Bruno, its name, Bruno उसका नाम है, तो वो भी noun हो गया. Example number third. बेंगलुरु is known as Silicon Valley of India. बेंगलोर को भारत के सिलिकन वैली के रूप में जाना जाता है. Here Bangalore is a place. So this is a noun. ये भी संज्ञा है. बेंगलोर एक जगह का नाम है. India is a country name. It is also a noun. Next example, Ashoka is known for his greatness. Here, give some attention. Ashoka is the name of person that I have already explained. Okay, and now I am going to explain you the word greatness. Greatness is a name of quality. As I told
told you before, greatness is a name of quality. I told you the name of quality is called noun, but listen to me carefully. This is an abstract noun and you will be taught abstract noun in my next videos. Okay, laughing is a good exercise. Here laughing, so guys pay some attention. Laughing is not verb here. Laughing means हंसना. हंसना एक अच्छा व्यायाम है. ओके, laughing is good exercise. हंसना अच्छा व्यायाम है. और यहाँ पर हंसना, laughing का मतलब होता है हंसना. हंसना यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है. और ये भी आपको मैं पढ़ाऊंगा जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा. सारे जब पार्ट ऑफ स्पीच में जो वर्ब एक हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको जेरेंड और इन्फिनिटिव पढ़ाया जाएगा. ये जेरेंड वर्ब होती है, जेरेंड वर्ब होती है, लेकिन जब स्टार्टिंग में यूज़ होता है तब ये एज अ नाउन यूज़ होता है. ओके, एंड लास्ट सेंटेंस इज आई ईट 2 एप्पल डेली. हियर एप्पल्स, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. व्हाट आई ईट, मैं क्या खाता हूँ, एप्पल खाता हूँ. तो एप्पल क्या हो गया, सेब. सेब हो गया noun. I repeat, listen me carefully. I repeat again. What is noun? A noun that is name of person, animal, place, things, quality, idea, and typically used in a sentence as subject or object of a verb or as an object of prepositions. So guys, whenever you will be asked the definition of noun, some of the students give definition of noun. Noun is the name of any person, place or things, right? But this is the perfect definition of noun because it includes the name of quality, idea and object of preposition as well as verb. Okay, and keep always in your mind, noun are also called naming words. अगर आपको कोई डाउट होता है तो इस वीडियो को पॉज करके आप सारे डाउट को समझ सकते हैं. फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कुछ भी जान सकते हैं. सो गाइस, नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन. एंड नाउ वी विल डिस्कस ऑन काइंड्स ऑफ नाउन. ओके, सो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ नाउन. Are first common noun, second proper noun, third abstract noun, 4 collective noun, 5 material noun, 6 number possessive noun, and 7th multitude noun. Here is a noun that are possessive and multitude. Possessive noun, most of the students know about this. Okay, but multitude noun is a noun that is a rare noun. Okay, so we will discuss about this in detail. Kinds of noun. So our first type of noun is common noun. What is common noun? Okay, common noun क्या होता है उसको हम देखते हैं. और common noun को हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपने हिंदी व्याकरण पढ़ा है तो आपको ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा समझने के लिए. इसको क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा. डेफिनेशंस क्या होती है वो भी देख लीजिए. नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल ऑफ सेम क्लास और काइंड. तो कुछ भी बोल सकते हैं, सेम क्लास या सेम काइंड. आई मीन टू से नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, राइट. किसी भी प्लेस, किसी भी जगह का नाम, किसी भी वस्तु का नाम और किसी भी जानवर का नाम, एनिमल का नाम. ये किसी के भी नाम हो लेकिन वो एक ही क्लास के हो. अब क्लास का मतलब यहाँ पर वो क्लास नहीं है कक्षा जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं. ओके, यहाँ पर क्लास का मतलब क्या आ जाएगा, जाति. जाति को यहाँ पर हम इसको एक तरीके से और डिस्क्राइब कर सकते हैं, ग्रुप.
क्या बोल सकते हैं, ग्रुप। सेम ग्रुप के हिंदी में बोल सकते हैं, क्योंकि जब हिंदी में जातिवाचक संज्ञा हम लोग पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि एक ही जाति के। जाति तो आप समझते हो, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में कास्ट सिस्टम भाई बहुत चलता है। जाति वो कहते भाई हम ब्राह्मण जाति के हैं, और वो कह देते भाई हम फलाने जाति के हैं, फलाने जाति। तो इस तरीके से आपको जाति वाला सिस्टम तो है, वो हमारे इंडियंस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि इंडिया में इसके अलावा ज़्यादा कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। जातिवाद यहाँ पर बहुत है, तो आप जातिवाचक अगर संज्ञा नहीं समझ पाए तो भैया आप अपनी जाति समझिए। अपने पापा मम्मी से, आसपास वालों से पूछना कि जाति क्या होती है, और पूछना कि हमारी जाति क्या है, और आगे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो जाति का हम कह सकते हैं, इसको ग्रुप भी बोल सकते हैं, काइंड से बोल सकते हैं, सेम क्लास। सेम का मतलब आपको पता होगा समान, समान जाति के। अब जैसे कि ब्राह्मण जो कि जनरल में होता है, इसके बाद वो SC ST इस तरीके की जातियाँ होती, तो यहाँ भी जातियाँ हैं। तो एक बार मैं दोबारा पढ़ता हूँ। नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम, प्लेस किसी भी जगह का नाम, थिंग किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी जानवर का नाम, ऑफ सेम क्लास एक ही जाति के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर का नाम, वो क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा, यानी कि कॉमन नाउन होता है। ओके, सो हम इसको अब समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। द बॉय हु इज लाफिंग इज माई ब्रदर। लड़का जो हंस रहा है इज माई ब्रदर, वो कौन है, मेरा भाई। जो लड़का ने दांत दिखा रहा है ना, मतलब हंस रहा है, वो कौन है, मेरा भाई है। ठीक है भैया। तो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है किसको, बॉय, दैट इज अ नाउन। अब कौन सा नाउन है, नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट कॉमन नाउन। तो ये क्या हो गया, कॉमन। क्यों कॉमन हो गया इसके बारे में मैं बताऊंगा। और जो वो है कौन, भाई। द बॉय हु इज लाफिंग इज माई ब्रदर। यहाँ पर मैंने दोनों वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, बॉय और ब्रदर को। दोनों ही कैसे नाउन है, दोनों ही कॉमन नाउन हुए। क्यों, क्योंकि सारे बॉयज जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। अब कॉमन में ये मत देख लेना कि जो भैया हमारे कौन है, वो क्या बोलते हैं उन्हें, वेस्टर्न, यानी कि हमारे अंग्रेज जो बहुत गोरे होते हैं, हमारे जो अफ्रीका वाले होते हैं वो बहुत ही काले होते हैं, तो उनमें अपीयरेंस पे नहीं जाना है हम लोग को। हम देखते हैं कि जो बॉयज़ में जो क्वालिटी है वो क्या होती है, सेम होती है। ओके, और ब्रदर, ब्रदर का मतलब होता है भाई, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो ब्रदर जो है वो कॉमन वर्ड है। यहाँ पर आप इसको ज़्यादा ब्रीफली कैसे समझ पाएंगे, ये तब समझ पाएंगे when I will teach you the second types of noun, proper noun. Okay, and next sentence is there are lots of river flow in India. भारत में कई सारी नदियाँ जो है बहती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, रिवर, that is highlighted word river is common noun because river, सारी रिवर कॉमन होती हैं। अब क्यों कॉमन है भैया, सारी रिवर में क्या होता है, कॉमन क्यों है, सारी रिवर में पानी तो होता है। अब ऐसी तो है नहीं, कोई सरसों के तेल की नदी बह रही हो, ठीक है, और बाकी पानी की है, तो रिवर जो है वो कैसा है, कॉमन वर्ड है। थर्ड एग्जांपल है, देयर आर 7 कंटिनेंट्स। हियर हाईलाइटेड वर्ड कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कितने महाद्वीप हैं, तो पूरी दुनिया में भैया 7 महाद्वीप हैं। तो कंटिनेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंटिनेंट यहाँ हो जाएगा कॉमन नाउन। और कॉमन क्यों होगा, क्योंकि सारे कंटिनेंट में क्या है, लैंड मास है, इसीलिए वो कॉमन वर्ड हो जाएगा। थर्ड नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है, लॉयन इज नोन एज किंग ऑफ फॉरेस्ट। शेर को जंगल का राजा बोला जाता है। तो यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड हमारा क्या है, लॉयन। अब शेर जो है या कोई भी, चाहे डॉग होता है इसकी जगह पे, चाहे टाइगर होता है, वो कॉमन होते हैं। ठीक है, अब मैं अभी आपको एक और एग्जांपल देने वाला हूँ, जैसे कि डॉग। ओके, तो डॉग जो वर्ड है ये क्या है, ये कॉमन है, क्या है, ये कॉमन है। डॉग जो है वो कॉमन नाउन है। बट यहाँ पर मैं एक देख लीजिए आप, पग इज अ ब्रीड ऑफ डॉग। ओके, तो पग को क्या बोलेंगे, प्रॉपर बोलेंगे या कॉमन बोलेंगे, नहीं भैया, पग जो है तो वो भी क्या है, डॉग ही है, तो वो भी क्या रहेगा,
कॉमन ही रहेगा, क्योंकि एक पग डॉग आप ले जाते हैं, एक आपका फ्रेंड ले जाता है, आप उसका नाम रखते हैं क्या, हीरा, और कोई रख देता है मोती, तो दोनों के पर्टिकुलर नेम्स हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों को डॉग नहीं थे, तो दोनों डॉग थे, इसका मतलब ये ब्रीड को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, चाहे पिटबुल हो, चाहे रॉटवीलर हो, चाहे पग हो, चाहे कोई भी हो, तो उससे जो है इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है कि नाउन हमारा प्रॉपर हो गया है। तो प्रॉपर नहीं हो जाएगा, प्रॉपर तब हो जाएगा जब आप उसे स्पेसिफिक नेम देते हो। ओके, टीचर हैज़ गिवन मी एन असाइनमेंट, टीचर ने मुझे क्या दिया है, असाइनमेंट। टीचर यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है, क्योंकि सारे टीचर होते हैं कॉमन। सारे टीचर का क्या काम होता है, पढ़ाना। हाँ भैया, सारे टीचर का काम होता है पढ़ाना, लेकिन अपने इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, लेकिन अपना जो ये पास वाले नहीं है वे अपनी जंडू बम चाचा, मतलब इमरान चाचा, उनके यहाँ पर टीचर का काम पढ़ाना होता है या गोली चलाना सिखाना, वो आप लोग सब समझते हो। लेकिन इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ तो, या पूरे वर्ल्ड की, तो वहाँ के टीचर का क्या काम है, पढ़ाना। तो इसलिए टीचर हुआ, डॉक्टर हुआ, फ्रेंड हुआ, ये सारे कॉमन वर्ड्स हैं, एंड दे ऑल वर्ड्स रिलेटेड टू कॉमन नाउन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकंड टाइप्स ऑफ नाउन, दैट इज प्रॉपर नाउन। So this is second types of noun, proper noun, and this is called इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। Definitions क्या होती है, what is the definitions of proper noun? Name of any particular person, place, things and animals is called proper noun. Name of any particular person, place or things. ध्यान दीजिए, आपने जो लास्ट वीडियो में भी देखा था वहाँ पर भी पर्सन, प्लेस और थिंग्स के ही नाम आपको बताए गए थे, बट यहाँ पर एक जो वर्ड मैंने ऐड किया है वो है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब हो जाएगा विशेष, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम, किसी विशेष पर्सन का नाम, स्पेशल प्लेस का नाम, थिंग्स का नाम, एनिमल्स का नाम, यानी किसी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, वस्तु का नाम, किसी जानवर का नाम, वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन। अगर हम किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स को कोई पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड करते हैं, टू प्रोवाइड एनी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नेम टू एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल, दैट इज कॉल्ड proper noun. For example, Shivam is a genius boy. Who is Shivam? Shivam is a boy. Boy is common noun that I have already taught you. And here Shivam, that is underlined word, I mean highlighted word, Shivam is a proper noun. Okay, because it is a boy. Delhi is the most polluted city. दिल्ली जो है वो सबसे ज़्यादा जो कहते हैं प्रदूषित शहर है, तो दिल्ली क्या हो जाएगा, मोस्ट पोल्यूटेड हियर। दिल्ली क्या है, व्हाट इज दिल्ली, दिल्ली इज अ सिटी। अगर सिटी को एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है, सिटी को एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, तो वो सिटी का स्पेसिफिक नेम क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर नेम क्या हो जाएगा, दिल्ली। तो दिल्ली यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। रामायण इज द होली बुक ऑफ हिंदूज, तो रामायण क्या है, रामायण एक है होली बुक। अब ये बुक है और आप जानते हो सारी बुक का क्या काम होता है, सारी बुक्स कॉमन होती हैं, दैट इज़ यूज्ड फॉर रीडिंग, जो कि रीडिंग के पर्पज से यूज़ की जाती हैं। तो वही मैंने एक बुक का यहाँ पर क्या नाम दे दिया है, रामायण, जो कि क्या है, एक बुक है और इसका एक स्पेसिफिक नेम भी है। एंड लास्ट सेंटेंस, ब्रूनो इज़ माई पेट, मेरे पेट का क्या नाम है भैया, ब्रूनो। ब्रूनो डॉग है, जो मेरा पेट जो डॉग है उसका क्या नाम है, ब्रूनो। तो मैंने उसे स्पेसिफिक नेम दिया है, वो क्या है, ब्रूनो। आपका जो पेट है आप उसे कुछ भी नाम दे सकते हो, तो वो उसको हम बोलेंगे कोई पर्टिकुलर यानी कि स्पेसिफिक विशेष नाम। देन आई रिपीट, व्हाट इज प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो किसी विशेष व्यक्ति का नाम, जगह का नाम यानी कि प्लेस का नाम, थिंग्स का नाम और एनिमल्स का नाम होता है, इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल मैंने आपको बताई दिए, इस वाली टेबल से हम लोग समझते हैं, एंड दिस विल हेल्प ऑल ऑफ यू टू मच। दिस
vocabulary is divided into two parts. One part is common noun denotes and second part denotes proper noun. Okay. First, teacher. Teacher is a common noun because all teacher belongs to same class. All the teacher teach. टीचर. अब टीचर को एक स्पेसिफिक नेम दे दिया तो वो कौन है? मिस्टर गुप्ता. मिस्टर गुप्ता इज अ स्पेसिफिक नेम गिवन टू अ टीचर. तो प्रॉपर नाउन के कॉलम में कौन लिखा है? मिस्टर गुप्ता, जो कि एक टीचर है. तो यहाँ पर अगर टीचर वर्ड क्या हो जाएगा हमारा? कॉमन नाउन हो जाएगा. तो मिस्टर गुप्ता क्या हो जाएंगे? टीचर का जो स्पेसिफिक नेम होगा वो जाएगा प्रॉपर नाउन. रिवर, ऑल द रिवर्स आर कॉमन, दे बिलोंग्स टू सेम कैटेगरी एंड द स्पेसिफिक नेम इज गंगा. गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र. तो कोई भी जो है वो पर्टिकुलर नेम है तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन. बुक, इफ वी टॉक अबाउट बुक्स, ऑल द बुक्स आर कॉमन, दे आर यूज्ड फॉर रीडिंग पर्पस एंड द स्पेसिफिक नेम बाइबल. ओके. सिटी, सिटी वेयर वी लिव, स्पेसिफिक नेम मुंबई. एक्टर, all actor belong to same category, all actor acting. अक्षय, अक्षय एक एक्टर का स्पेसिफिक नेम है, पर्टिकुलर नेम है. डॉग, डॉग बिलोंग्स टू सेम कैटेगरी. ब्रूनो. ओके. और उसका स्पेसिफिक नेम हो गया ब्रूनो. आई हैव taught you proper noun in this video. Now we will discuss on other kinds of nouns such as collective noun, abstract noun, etc. Okay.